Prime Minister Narendra Modi will inaugurate exposition of sacred Piprava relics titled The Light in the Lotus, Relics of the Awakened One in New Delhi's Rai Pithoda Cultural Complex. The exposition aims to reaffirm India's commitment to heritage preservation and cultural leadership while celebrating India's spiritual legacy. Up on your screens, you can see Prime Minister Narendra Modi at the exhibition. For the first time, this historic exhibition reunites the sacred relic jewels of Lord Buddha taken away during the colonial era with the Piprava relics and jewels preserved at the National Museum, New Delhi and Indian Museum, Kolkata. Also, the repatriation of these sacred gem relics previously in the possession of William Claxton Pepe's family, acquired by the Godrej Group through an innovative public-private partnership with the Ministry of Culture, Government of India, reaffirms India's resolve to protect and honor its ancient heritage. Prime Minister Narendra Modi visiting the international exhibition of the sacred Piprava relics related to Lord Buddha, viewing artifacts of deep historical and spiritual significance. Also, we can see Prime Minister being briefed by the officials on the origin of the relics discovered at Piprava in Uttar Pradesh and the importance in understanding the life and legacy of Lord Buddha. The return of these sacred jewels restores their rightful spiritual context, renewing cultural bonds in India and reconnecting global audience with Buddha's timeless message of peace and compassion. The exhibition will feature over 80 objects spanning the 6th century BCE to the present, including sculptures, manuscripts, and the ritual objects. In fact, discovered in 1898, the Piprava relics occupy a pivotal place in the archaeological study of early Buddhism. Also to tell you that they are among the earliest and most historically significant relic deposits directly associated with Bhagwan Buddha, according to an official statement. Also, archaeological evidence links the Piprava site to ancient Kapilavastu, widely believed to be the place where Gautam Buddha spent his early life before his renunciation. The exhibition, organized thematically, features a reconstructed interpretive model inspired by the Sanchi Stupa at its center, as you can see, bringing together authentic relics from national collections and the repatriated gems. Also, other sections include Piprava Revisited, vignettes of the life of Buddha, intangible in the tangible, the aesthetic language of Buddhist teachings, expansion of Buddhist art and ideals beyond borders, and repatriation of cultural artifacts, the continuing endeavor. As Prime Minister moves through the exhibition, he's observing the thematic displays that trace the spread of Buddha teaching and his Buddhist teachings from India to the world. In fact, the exhibition also combines original relics with immersive visual presentations, highlighting India's ancient civilizational heritage and message of peace and compassion. In fact, earlier Prime Minister called on the citizens to visit the exhibition, describing it as a special day for those passionate about history and the ideals of Bhagwan Buddha. He emphasized that experiencing this heritage firsthand provides profound insights into India's spiritual legacy and the role as the cradle of Buddhism.
Prime Minister Narendra Modi right now at the exhibition up on your screens. The landmark cultural exposition titled The Light and the Lotus, Relics of the Awakened One. The exhibition is being held at the Rai Pithoda Cultural Complex in New Delhi. In fact, to give you the historical background of this, for the first time since their discovery in 1898, the exhibition reunites sacred Piprawa relics that were scattered globally, and this includes gem relics recently repatriated to India in July 2025 after 127 years abroad. Also, as we told you, the exhibition features over 80 objects dating from the 6th century BCE to the present, including authentic relics and archaeological materials from the National Museum, New Delhi, and Indian Museum in Kolkata. It also has sculptures, manuscripts, tankas, and ritual objects. Also, the monolithic stone coffer in which the gem relics and reliquaries were originally found are present. It is totally an immersive experience. In the center of the exhibit features a reconstructed interpretive model inspired by the Sanchi Stupa. It is supported by multimedia presentations, digital reconstructions, and immersive films to enhance public understanding as well. And above all, the event underscores India's commitment to protecting its cultural patrimony, with the Ministry of Culture highlighting the repatriation of over 640 antiquities under the current leadership. To tell you again, the exhibition is located at the Rai Pithoda Cultural Complex and is expected to remain open for the next 6 months. And Prime Minister right now is at the exhibition, the landmark cultural exposition, which is titled The Light and the Lotus, Relics of the Awakened One, at the Rai Pithoda Cultural Complex in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate exposition of sacred Piprawa relics titled The Light and the Lotus, Relics of the Awakened One, at the Rai Pithoda Cultural Complex in New Delhi. Also, the exposition aims to reaffirm India's commitment to heritage preservation and cultural leadership while celebrating India's spiritual legacy. It's very important to note here that it is for the first time this historic exhibition reunites the sacred relic jewels of Lord Buddha taken away during the colonial era with the Piprawa relics and jewels preserved at the National Museum, New Delhi, and Indian Museum, Kolkata. The exhibition showcases repatriated relics, archaeological artifacts, and immersive displays highlighting Buddha's life, India's Buddhist heritage, and also global cultural legacy. In fact, yesterday, Prime Minister wrote on X, and I quote, "Tomorrow, 3rd January, is a very special day for those passionate about history, culture, and the ideals of Bhagwan Buddha. At 11 a.m., the Grand International Exposition of Sacred Piprawa Relics related to Bhagwan Buddha, the Light and Lamp, the Lotus, Relics of the Awakened One, will be inaugurated at Rai Pithoda Cultural Complex in Delhi," unquote. Also highlighting the significance of the exhibition, Prime Minister said the exposition brings together the Piprawa relics repatriated after more than a century and authentic relics and archaeological materials from Piprawa that are preserved in the collections of the National Museum, New Delhi, and the Indian Museum, Kolkata. These Piprawa relics were discovered in 1898
and they occupy a pivotal place in the archaeological study of early Buddhism, and they are among the earliest and most historically significant relic deposits directly associated with Bhagwan Buddha, according to an official statement. Also, the archaeological evidence links the Piprava site to ancient Kapilavastu, widely believed to be the place where Gautam Buddha spent his early life before renunciation. The exposition also underscores India's enduring civilizational connection with the teachings of Buddha and reflects Prime Minister's commitment to preserving and promoting the country's rich spiritual and cultural heritage. In fact, the recent repatriation of the relics has been made possible through sustained government efforts, institutional collaboration, and innovative public-private partnership. I repeat, the recent repatriation of the relics has been made possible through sustained government efforts, institutional collaboration, and innovative public-private partnerships. Up on your screens, you can see Prime Minister at the exhibition, and organized thematically. The exhibition features a reconstructed interpretive model inspired by the Sanchi Stupa as well. At its center, bringing together authentic relics from national collections and the repatriated gems. In fact, to deepen public engagement and understanding, the exposition is supported by an extensive audio-visual experience as well, including immersive films, digital reconstructions, interpretive projections, and very important multimedia presentations. These elements, after accessible insights into the life of Bhagwan Buddha, the discovery and journey of the Piprava relics, and the artistic traditions inspired by his teachings. The exposition very clearly highlights India's deep and continuing civilizational link with the teachings of Bhagwan Buddha and reflects Prime Minister's commitment to preserving India's rich spiritual and cultural heritage. Well, the recent repatriation of these relics has been achieved through sustained government effort, institutional cooperation, and innovative public-private partnerships as well. The 6-month exhibition will take place inside a temporary museum in the Guttab Golf Course complex. The exhibition has been jointly curated by the Archaeological Survey of India and the National Museum, which will remain open to the public for around 6 months from now, offering visitors a rare encounter with artifacts that sit at the intersection of faith, archaeology, and global history. In fact, the exhibition has been designed so that it places the relics not merely as objects of devotion, but as witnesses to the spread of Buddhism across Asia and beyond. The exhibition features the Piprava relics sections tracing the expansion of Buddhist culture and artifacts recovered from different parts of the world. In fact, the venue itself carries a lot of symbolic weight,
Kila Rai Pithora, ruins of which can be spotted across South Delhi, including at the Mehrauli archaeological part near the Qutub Minar, though largely reduced to ramparts and buried walls, marks one of the earliest phases of Delhi's urban history. In fact, tracing history, it was here towards the end of the 12th century that Prithviraj III, known better as Rai Pithora, expanded the older Tomar citadel of Lal Not to establish what would become the first of Delhi's historic cities. In fact, according to records, the Tomar Rajputs initially settled around Surajkund before shifting westwards, where Anangpal II raised Lal Kot, and Prithviraj III later extended this fortification, creating Kila Rai Pithora. At the heart of the exhibition are the Piprawa relics, which were discovered in 1898 by the British civil engineer William Claxton Pepe at Piprawa in the present-day Uttar Pradesh, believed to be associated with the mortal remains of Lord Buddha and enshrined by his followers around the 3rd century BCE. The relics are among the most significant Buddhist finds ever made in India. In fact, to tell you, their spiritual importance of the relics, however, extends far beyond the subcontinent, making them objects of deep reverence for Buddhists around the world. Prime Minister Narendra Modi at the international exhibition of the sacred Piprawa relics related to Lord Buddha, viewing artifacts of deep historical and spiritual significance. Prime Minister is also being briefed by the officials on the origin of these relics discovered at Piprawa in Uttar Pradesh and the importance in understanding the life and the legacy of Lord Buddha. Prime Minister observing the thematic displays that trace the spread of Buddhist teachings from India to the world. In fact, the exhibition also brings together a carefully selected group of repatriated and international artifacts, and these also include an 11th century CE celestial dancer Apsara sculpture, which you've been viewing up on your screens, returned from the United States. This is a 2nd century CE panel depicting the miracle of Saraswati, acquired from Kabul, showing Buddha radiating flames, and a plaque illustrating the 12 deeds of Sakyamuni Buddha returned from Tibet. In fact, the exhibition gives people a chance to experience two distinct sides of Indian history, one rooted in kings and fortifications, and the other in relics that depict devotion. The exposition, titled The Light and the Lotus Relics of the Awakened One, thematically showcases relevant antiquities and works of art from several cultural institutions under the Ministry of Culture. In fact, these relics represent the most extensive assemblage attributed to the Buddha, symbolizing profound philosophical meaning, masterful craftsmanship, which you can see, and global spiritual significance. The exhibition features over 80 objects spanning the 6th century BCE to the present, including sculptures, manuscripts, tankas, and ritual objects.
This unprecedented gathering commemorates the Ministry of Culture's successful repatriation of the relics in July 2025, achieved through a public-private partnership, halting an auction at Sotheby's Hong Kong. And for the first time since 1989 excavation, the exposition brings together relics from the 1898 Kapilavastu excavation, treasures from the 1972 excavations, reliquaries and jeweled treasures from the Indian Museum, Kolkata, recently repatriated relics from the Pepe family collection, and monolithic stone coffer without which the green relics and repatriations were originally, they were found there, within which in fact, the exposition underscores India's role as the birthplace of Buddhism and reinforces its position as a global spiritual and cultural leader. And under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India's global engagement increasingly draws upon its civilizational and spiritual inheritance. 642 antiquities have been repatriated to India, with the return of Piprava relics standing as a landmark achievement. In fact, the inauguration will witness participation from ministries, ambassadors, members of the diplomatic corps, venerable Buddhist monks, senior government officials, scholars, heritage experts, esteemed members of the art fraternity, art aficionados, followers of Buddhism, and students as well. Clearly, it affirms the ministry's commitment to heritage preservation and cultural leadership while celebrating India's spiritual legacy and its significance as the birthplace of Buddha Dharma, reflecting India's enduring commitment to preserving and sharing its civilizational heritage with the world. Prime Minister, up on your screens, observing the thematic displays that trace the spread of Buddhist teachings from India to the world. And now, as you can see, Prime Minister moving up to the stage after attending the exhibition. नमस्कार। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की ओर से 127 साल बाद भगवान बुद्ध के रत्न अवशेषों की भारत में ऐतिहासिक वापसी को चिन्हित करते हुए भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन के उद्घाटन समारोह में हम आपका स्वागत करते हैं। भगवान बुद्ध के संदर्भ में कमल पवित्रता, ज्ञान और दुख से ऊपर उठने का प्रतीक है, जो कीचड़ से बिना दाग के उगता है, जबकि प्रकाश उनके उस ज्ञान को दर्शाता है जो इस चेतना के रास्ते को प्रकाशित करता है, जो दुनिया की कठिनाइयों को आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के ओज से जोड़ता है। सर्वप्रथम मैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से अनुरोध करती हूं कि आप कृपया अपने स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के 127 साल बाद भारत पुनः वापसी
और उनके दो हिस्सों के एक साथ जुड़ने के इस ऐतिहासिक क्षण में आज संस्कृति मंत्रालय द्वारा रची गई इस प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर विरासत भी और विकास भी इस मंत्र के दृष्टा विकसित भारत के सपने को साकार करने के संकल्प के साथ जुटे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज यहाँ स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये समय देने के लिए और सतत मार्गदर्शन के लिए हृदयपूर्वक आभार करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम सब के बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, आदरणीय राव साहब इंद्रजीत सिंह जी, आदरणीय रामदास अठावले जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सम्माननीय श्री विनय सक्सेना जी, सम्मानित दिल्ली सरकार के मंत्रीगण, भारत सरकार के संस्कृति सचिव आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी, मोस्ट रेवरेंड monks and the nuns present here, excellencies from diplomatic corps, सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित मीडिया के सारे मित्र, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, देवियों और सज्जनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। नमो बुद्धाय। आप सबकी सारस्वत उपस्थिति से निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम गरिमामयी हुआ है। भगवान बुद्ध के ये पवित्र रत्न भगवान बुद्ध की उस जीवंत परंपरा से जुड़े हैं जो जीवंत परंपरा करुणा, विवेक, विवेकपूर्ण ज्ञान और संतुलन को भारतीय चेतना में सुस्थापित करती है। भगवान बुद्ध का दर्शन इस भारत की अनूठी आत्मा का दर्शन है। भारत से निकले भगवान बुद्ध के इस बुद्ध धर्म ने न केवल एशिया को अपितु विश्व के लिए मानवता के मंत्र के स्वरूप काम किया है। रत्नों की वापसी, जिसके उत्सव के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं, ये केवल स्वामित्व का विषय नहीं है। हम सब के मन में माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि विरासत भी और विकास भी के लिए एक नए उत्तरदायित्व की चेतना का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में संस्कृति केवल अतीत की स्मृति या स्मरण मात्र नहीं है, अपितु राष्ट्र निर्माण की एक आधारशिला के रूप में है। ऐसा दिग्दर्शन आज देश के 140 करोड़ लोगों को हुआ है। आज का ये अवसर आपकी उसी संकल्पना के साकार होने के महाकाव्य के एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में है। दुर्लभ और सभ्यतागत रूप से महत्वपूर्ण अवसर के आज हम सब लोग साक्षी बने। एक ऐसा अवसर जब 127 साल बाद पवित्र पेपरवाह के रत्नों की घर वापसी हुई है और उनके दो हिस्से एक साथ जुड़ करके एक साथ दर्शन करने के लिए हम सब लोगों के लिए उपलब्ध हुए हैं। ये निश्चित रूप से उत्सव का अवसर है, आनंद का अवसर है और साथ ही साथ हम सब लोगों के लिए एक वैश्विक प्रेरणा का पल भी है। आनंद इसलिए कि भगवान बुद्ध की वो धरोहर, वो विरासत जो गुलामी के उस कालखंड में भारत से निकलकर चली गई, आज एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत प्रयास, उनके निरंतर मार्गदर्शन और उनके इस विषय को लेकर के चेतना और भारत का जिस तरह से भारत की स्थिति में परिवर्तन उनकी निरंतर श्रम साधना के चलते वैश्विक परिदृश्य में हुआ है, आज हम सब लोग उस आनंद का उत्सव बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ में ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का विषय भी है, संकल्प का विषय भी है, क्योंकि राष्ट्र का नेतृत्व जब विरासत का सम्मान करने के लिए संकल्पित हो, राष्ट्र का नेतृत्व गुलामी के निशानों को मिटाने के लिए संकल्पबद्ध हो और अपने साथ साथ में अपनी विरासत को सहेजने के लिए कृत संकल्प हो, तभी और केवल तभी इस तरह का परिदृश्य संभव हो पाता है। मित्रों, सतत प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी की और उसके साथ साथ में विश्व पटल पर भारत की बदली हुई परिस्थिति का
निश्चित रूप से प्रदर्शन, इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम सब यहाँ करने में कामयाब हुए हैं। इस प्रदर्शनी में पेपरवाह के विदेश से लाई गई संपदा के अतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय से लाए गए अस्थि अवशेष, मूल पात्र, उत्खनन के समय में प्राप्त हुए रत्न और उसके साथ साथ में उत्खनन के दुर्लभ प्रमाण, ये सब यहाँ एक साथ अपना अजर अमर संदेश और भगवान बुद्ध के दर्शन की व्याख्या करने के लिए यहाँ हम सब के लिए उपलब्ध हैं। 2047 के विकसित भारत की संकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसके लिए जो उनका मंत्र कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में भारत का संस्कृति मंत्रालय जो है न केवल पुरातात्विक संपदाओं का संरक्षण कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं का उन्नयन करने के लिए काम कर रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटाइजेशन कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहा है और साथ साथ में विश्व के पटल पर भारत की इस अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास भी कर रहा है। इसी दृष्टिकोण से युवा पीढ़ी को साथ जोड़ने के लिए हमने डिजिटल हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम प्रारंभ किया है और हम अपनी पुरातात्विक संपदाओं को सहेजे हुए सारे म्यूजियम्स को पुनर्गठन करने और उन्हें पुनर्सुदृढ़ीकरण करने पर काम कर रहे हैं। साथियों, मैं अत्यंत गर्व के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदयपूर्वक अभिनंदन, आभार 140 करोड़ लोग भारतवासियों की तरफ से ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि आज का ये पल निश्चित रूप से चाहे किसी भी मान्यता को मानने वाले लोग होंगे, किसी भी आस्था की या पूजा पद्धति का पालन करने वाले लोग होंगे, हम सब भारतीयों के लिए सामूहिक रूप से एक गर्व का विषय है और ये गर्व और आनंद का विषय माननीय प्रधानमंत्री जी की सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं था। मैं इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहता हूं गोडरेज फाउंडेशन के आदरणीय फिरोज शाह गोडरेज और उनके परिवार को भी कि उन्होंने इस अनूठे पल को साक्षी करने के लिए जो जन सहभागिता और पीपीपी का जो मॉडल है, एक नया मॉडल भारत में खड़ा करने की दिशा में हम सब का सहयोग किया। आप सबकी सारस्वत उपस्थिति का वंदन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। नमो बुद्धाय। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक लघु फिल्म। ये फिल्म 1898 में पेपरवाह के अवशेषों की खोज से लेकर उनकी नीलामी की कोशिशों तक और फिर रत्न अवशेषों को वापस भारत लाने तक की ऐतिहासिक यात्रा पर तैयार की गई है। आइए देखते हैं। भारत, वो पावन भूमि जहां बुद्ध धम्म का जन्म हुआ, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिसने बौद्ध विरासत के वैश्विक संरक्षक के रूप में पूरे विश्व को सदियों से शांति, करुणा और सार्वभौमिक सद्भाव का संदेश दिया है। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नीति के अंतर्गत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिनमें बौद्ध बहुल राष्ट्र भी शामिल हैं। गत वर्ष 2025 जून में ये संयुक्त राष्ट्र के वेसाक दिवस समारोह के लिए वियतनाम के हो ची मिन्ह और हनोई समेत 4 शहरों में पहुंचे। अक्टूबर में ये पवित्र अवशेष यूरोप के सबसे बड़े बौद्ध समुदाय स्थल गोल्डन एबोर्ड ऑफ बुद्ध शाक्य मुनि कालमिकिया रशिया पहुंचे और फिर नवंबर में भूटान के ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भी ले जाए गए। इसके पहले ये पवित्र अवशेष मंगोलिया, थाईलैंड और श्रीलंका समेत अन्य देशों में भी ले जाए गए हैं। ये अवशेष जहां जहां पहुंचे वहां पूर्ण श्रद्धा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सौहार्द
और रिश्तों के गहरे तार जोड़े और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को सुदृढ़ किया। एक तरफ जहां भारत अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पूरी दुनिया के साथ उदारतापूर्वक साझा करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी धरोहरों को जो कॉलोनियल शासन या अवैध तस्करी के माध्यम से विस्थापित हो गए थे, उन्हें वापस लाने में भी पूर्ण रूप से सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए एक संकल्पित राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इस प्रतिबद्धता ने एक सशक्त वैश्विक स्वर पाया। पिछले एक दशक में ही भारत ने विभिन्न देशों से 642 प्राचीन वस्तुओं की सफलतापूर्वक घर वापसी की है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। देश के धरोहरों की वापसी और प्रत्यर्पण भारत की सांस्कृतिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है और मजबूत राजनीतिक संकल्प के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। दुनिया ने 2025 में इस नीतिगत संकल्प का प्रत्यक्ष अनुभव किया। अप्रैल 2025 संस्कृति मंत्रालय को सॉथबीज हांगकांग में पिपरवा के पवित्र रत्न अवशेषों की नीलामी लिस्ट में शामिल होने की खबर मिली। भारत ने तुरंत कदम उठाया। संदर्भ है 1898 का, जब ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे को एक आम खुदाई में अप्रत्याशित रूप से स्वयं भगवान बुद्ध के अवशेष मिले। इनमें शामिल थे रत्न अवशेष, जिसका एक भाग पेपे परिवार ने अपने साथ रखा और बाकी कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में संरक्षित रहे। यही रत्न अवशेष पेपे परिवार द्वारा 7 मई को सॉथबीज हांगकांग में नीलामी के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। नीलामी भारत के कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, चुनौती कठिन थी, समय कम था और मामला अत्यंत संवेदनशील। 2 मई भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह मुद्दा द्विपक्षीय बैठक के दौरान ब्रिटेन के साथ उठाया, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करने में अपनी सरकार की असमर्थता व्यक्त की। 5 मई सॉथबीज हांगकांग को भारतीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया गया। नोटिस में नीलामी को तत्काल रोकने, सार्वजनिक माफी, सभी दस्तावेजों और वस्तुओं का पूर्ण विवरण मांगा गया। 6 मई कानूनी प्रक्रिया और नैतिक दबाव के बाद सॉथबीज ने संस्कृति मंत्रालय के साथ चर्चा की। इस चर्चा में हमने जोर दिया कि बुद्ध के पवित्र अवशेष को मात्र वस्तुओं की तरह नहीं माना जा सकता। 7 मई परिणाम स्वरूप सॉथबीज ने नीलामी को स्थगित कर दिया। 12 मई भारतीय विशेषज्ञों ने हांगकांग पहुंचकर यह प्रमाणित किया कि ये पिपरवा के रत्न अवशेष ही हैं। 30 जुलाई संस्कृति मंत्रालय ने गोदरेज समूह के साथ एक अनूठी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अवशेषों को अधिग्रहित किया और भारत लाए। विश्व को यह स्मरण रहे कि बुद्ध के ये अवशेष करुणा, शांति और संस्कृति के वो पवित्र प्रतीक हैं जो सदियों से यही संदेश देते आए हैं। भारत बुद्ध की भूमि है, युद्ध की नहीं। माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर 2 ग्यालंग वादकों ने अपने वाद्य यंत्रों की मधुर धुन से अतिथियों का स्वागत किया। ग्यालंग एक पारंपरिक लकड़ी का वाद्य यंत्र है जो बांसुरी जैसा दिखता है और हिमालय बौद्ध अनुष्ठानों का एक अहम अंग है। इस कार्यक्रम में ग्यालंग के स्वागत से लेकर मंत्रोच्चारण और सूत्रपाठ तथा समकालीन और पारंपरिक नृत्य जो अब प्रस्तुत किए जाएंगे, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और भारत की विविध बौद्ध परंपराओं को दर्शाता है। पहले प्रस्तुत है अरुणाचल प्रदेश के ताई खामती समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य किंगनारा किंगनारी, जो मोर नृत्य है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ताई खामती हेरिटेज एंड लिटरेचर सोसाइटी के कलाकार। ये नृत्य अरुणाचल प्रदेश के नामसाई क्षेत्र में फल फूल रही बौद्ध संस्कृति को दर्शाता है।
सदियों की भक्ति और सामुदायिक प्रथाओं से जुड़ा यह नृत्य सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति दोनों का प्रतीक है।
अब प्रस्तुत है समकालीन भारतीय नृत्य बैले एकोज ऑफ एनलाइटनमेंट, पीस कम्स फ्रॉम विद इन। संरचना सुप्रसिद्ध नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर संगीता शर्मा द्वारा की गई है। ये प्रस्तुति उनके प्रतिष्ठित समूह अन्वेषणा सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स दिल्ली द्वारा 11 नर्तकों के साथ प्रस्तुत की जाएगी। ये मौलिक नृत्य रचना बौद्ध दर्शन और सार्वभौमिक आध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरित है, जो आत्मबोध और आंतरिक शांति की यात्रा को दर्शाती है। रचना को 3 खंडों आह्वान, अंतर्द्वंद और बोध में विभाजित किया गया है, जो स्थिरता से संघर्ष और अंततः आत्मिक जागरण की ओर ले जाती है। प्रस्तुति में मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथक जैसी शास्त्रीय नृत्य शैलियों को समकालीन नृत्य भाषा के साथ कुशलतापूर्वक पिरोया गया है। कल्लरीपयट्टू और छाऊ जैसे युद्ध कला तत्व अनुशासन और आंतरिक संघर्ष के प्रतीक हैं, जो अंततः संतुलन, शांति और आत्मिक सौम्यता में विलीन हो जाते हैं। एकोज ऑफ एनलाइटनमेंट, पीस कम्स फ्रॉम विद इन। Invoking the universal synergy of Buddha, a depiction of peace, love, wisdom, mindfulness with enlightenment.
Hatred does not cease by hatred, but only by love. This is the eternal rule. Peace comes from within. Do not seek it without. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह से निवेदन है, आप कृपया मंच पर पधारें। संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल से निवेदन है कि आप कृपया माननीय अतिथियों को लेकर मंच पर आएं। अब माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा प्रदर्शनी के कैटलॉग का विमोचन होगा। संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल से निवेदन है, आप प्रदर्शनी का कैटलॉग माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें। माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और माननीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी से निवेदन है, आप कृपया सभागार में अपने स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चीवर दान के लिए मंच पर बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करती हूँ। कर्नाटका के द्रेपुंग लोजलिंग मॉनेस्ट्री के पूजनीय क्याबजे योंगसिंग लिंग रिम्पोचे तेंजिंग लुंगटोक थिनले चोपाक, हिमाचल प्रदेश से रिम्पोचे कुंडलिंग लाद्रांग द्रेपुंग गोमांग बिहार के पूजनीय 13वें कुंडलिंग तात्साक रिम्पोचे तेंजिंग चोकी ग्यालसिन, दिल्ली से आईबीसी के प्रधान सचिव शार्द से खेंसू रिम्पोचे जांगचुप चोडन, अरुणाचल प्रदेश से नामसाई परयाती सासना बुद्ध विहार के मठाधीश पूजनीय अग्गधम्मा महाथेरा, लद्दाख से महाबोधि मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक निदेशक पूजनीय संघ सेना महाथेरा और कर्नाटका से महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु के महासचिव पूजनीय आनंद भिक्खु।
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जी वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, आप कृपया आशीर्वचन देते हुए मार्गदर्शन करें। नमो बुद्धाय। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, किरण रिजिजू जी, रामदास आठवले जी, राव इंद्रजीत जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, उनको निकलना पड़ा, और सभी मंत्रीगण के साथी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी, एक्सेलेंसीज, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सभी माननीय सदस्य, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, धम्म के अनुयायी, देवी और सज्जनों, 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर बौद्ध परंपरा से जुड़े भिक्षु और धर्माचार्य भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। मैं आप सभी का वंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा दे रही है। 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है, और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। साथियों, जिस स्थान पर ये प्रदर्शनी लगी है वो भी अपने आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का ये स्थान भारत के गौरवशाली इतिहास की यश भूमि है। इस ऐतिहासिक किले के इर्द गिर्द लगभग 1000 साल पहले
उस समय के पूर्व शासकों ने एक दृढ़ और मजबूत सुरक्षित दीवारों से घिरे नगर की स्थापना की थी। आज उसी ऐतिहासिक नगर परिसर में हम अपने इतिहास की एक आध्यात्मिक और पुण्य गाथा को जोड़ रहे हैं। साथियों, यहां आने से पहले मैंने विस्तार से इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती। गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटिक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम इनकी सार्वजनिक नीलामी नहीं होने देंगे। और मैं आज गोदरेज समूह का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनके सहयोग से भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध की कर्म भूमि, उनकी चिंतन भूमि और उनकी महाबोधि भूमि और उनकी महापरिनिर्वाण भूमि पर वापस लौटे हैं। साथियों, भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है और कालातीत है। ये समय में बंधा हुआ नहीं है। ये भाव हमने बीते कुछ महीनों में बार बार अनुभव किया। बीते कुछ महीनों में भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिस भी देश में गए, वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। थाईलैंड में अलग अलग स्थानों में ऐसे ही पावन अवशेष रखे गए थे। महीने भर से भी कम समय में वहां 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। वियतनाम में जन भावना इतनी प्रबल थी कि प्रदर्शनी की अवधि बढ़ानी पड़ी। वहां के 9 शहरों में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने बुद्ध अवशेषों को नमन किया।
मंगोलिया में गंदन मठ के बाहर हजारों लोग घंटों घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे। कई लोगों ने सिर्फ इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को छूना चाहा क्योंकि वे बुद्ध की भूमि से आए थे। रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में सिर्फ एक सप्ताह में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र रेलिक्स के दर्शन किए। ये वहां की आधे से भी अधिक आबादी के बराबर है। विभिन्न देशों में हुए इस आयोजन में क्या आमजन, क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सभी एक समान श्रद्धा से जुड़े। भगवान बुद्ध सबके हैं, भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। साथियों, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ आज मेरी कर्म भूमि है। जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था तब भी मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहता था। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे दुनिया भर में बौद्ध तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला है। नेपाल के लुम्बिनी में पवित्र माया देवी मंदिर में नतमस्तक होना अपने आप में अद्भुत अनुभव था। जापान में तोजी मंदिर और किंकाकुजी में मैंने महसूस किया कि बुद्ध का संदेश समय की सीमाओं से भी आगे है। मैं चीन में शियान की बिग वाइल्ड गुंजा पैगोडा में वहां भी गया, जहां से बौद्ध ग्रंथ पूरे एशिया में पहुंचे। वहां भारत की भूमिका आज भी स्मरण की जाती है। मैं मंगोलिया के गंदन मठ में गया तो मैंने देखा कि लोगों की आंखों में बुद्ध की विरासत से कितना जुड़ाव है। श्रीलंका के अनुराधापुरा में जयाश्री मोहाबोधि के दर्शन करना, उस परंपरा से जुड़ने का एहसास था जिसके बीज सम्राट अशोक, भिक्खु महेंद्र और संघमित्रा जी ने बोए थे। थाईलैंड के वाट फो और सिंगापुर के बुद्ध टूथ रेलिक मंदिर की यात्राओं ने भगवान बुद्ध के संदेशों के प्रभाव को लेकर मेरी समझ को और गहराई दी। साथियों, मैं जहां जहां गया मेरा प्रयास रहा कि मैं भगवान बुद्ध की विरासत का एक प्रतीक वहां के लोगों के बीच में जोड़ करके लौटूं। और इसलिए चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, मैं जहां भी गया बोधि वृक्ष के पौधे लेकर के गया था। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस हिरोशिमा पर, उस हिरोशिमा शहर को एटम बम ने तबाह कर दिया था, वहां के बॉटनिकल गार्डन में
बोधि वृक्ष का होना मानवता के लिए कितना बड़ा मैसेज बना है। साथियों, भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता, बल्कि हमारा जुड़ाव कहीं गहरा है। हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हैं। हम आस्था और अध्यात्म से भी कनेक्टेड हैं। साथियों, भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। पिपरवा, वैशाली, देवनी मोरी और नागार्जुन कोंडा जैसे प्राप्त भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष बुद्ध के संदेश की जीवित उपस्थिति है। भारत ने इन अवशेषों को साइंस और अध्यात्म हर रूप में संभाला है, सहेजा है। साथियों, भारत का ये भी निरंतर प्रयास रहा है कि दुनिया में बौद्ध विरासत से जुड़े भी स्थान हो, जो भी स्थान हो, उनके विकास के लिए हम यथासंभव योगदान दे सकें। जब नेपाल में आए भीषण भूकंप ने प्राचीन स्तूपों को नुकसान पहुंचाया, तो भारत ने उसके पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। म्यांमार के बागान में आए भूकंप के बाद हमने 11 से अधिक पगोड़ाओं का संरक्षण किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारत में भी बौद्ध परंपरा से जुड़े स्थानों और अवशेषों की खोज और उनके संरक्षण का काम निरंतर चल रहा है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, मेरा जन्म स्थान गुजरात का वडनगर बौद्ध परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वहां बौद्ध परंपरा से जुड़े हजारों अवशेष मिले थे। आज हमारी सरकार इनके संरक्षण पर भी बल दे रही है और आज की पीढ़ी को इनसे जोड़ भी रही है। वहां एक शानदार एक्सपीरियंशियल म्यूजियम भी बनाया गया है, जो करीब 2500 वर्ष के इतिहास का अनुभव देता है। अभी कुछ महीने पहले ही जम्मू कश्मीर के बारामूला में बौद्ध काल की प्रमुख बुद्धिस्ट साइट का पता चला है। धमेक स्तूप पर लाइट एंड साउंड शो और बुद्ध थीम पार्क का निर्माण किया गया है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। तेलंगाना के नालगोंडा में एक डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। सांची, नागार्जुन सागर, अमरावती, इन सभी जगहों पर तीर्थयात्रियों के लिए नई सुविधाएं विकसित की गई हैं। आज देश में एक बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है, ताकि भारत के सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों की आपस में बेहतर कनेक्टिविटी हो और दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को आस्था और आध्यात्म का एक बेहतरीन अनुभव मिल सके। साथियों, हमारा प्रयास है कि बौद्ध विरासत सहज रूप से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, वैशाख और आषाढ़ पूर्णिमा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के पीछे यही सोच है। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के
अभिधम, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में है। हमारा प्रयास है कि पाली भाषा सामान्य जन तक पहुंचे। इसके लिए पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इससे धम्म को, उसके मूल भाव को समझना और समझाना तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पिपरवा जो अवशेष हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और किस लिहाज। We were just listening to Prime Minister Narendra Modi inaugurating the exposition of sacred Piprava relics in Delhi. Prime Minister spoke about the rich Buddhist traditions that India has been part of, home to not just Buddhist relics but also living Buddhist traditions. On your screen, you can watch the various aspects of this exposition that Prime Minister inaugurated just a short while ago. In his address, Prime Minister also spoke about the manner in which India has played a role in keeping alive the Buddhist traditions, not just in the country, but also across the world. He gave examples of his personal experience. His birthplace of Vadnagar, Prime Minister said, happens to be an important place of Buddhist learning. Also spoke about Sarnath, that falls in his constituency and his Karma Bhumi. Prime Minister also spoke about the manner in which during his foreign travels he has carried a sapling of the holy Bodhi tree as a mark of respect to the rich Buddhist traditions of India. Also how the ancient language of Pali has been given the honor of classical language so that the Buddhist traditions, the original language, can be preserved and promoted. That was Prime Minister Narendra Modi in those visuals, taking a look at the exposition. It's titled The Light of the Lotus, Relics of the Awakened One. The ancient Buddhist relics of Piprava returned home to India after a gap of 125 years. Prime Minister said this homecoming marks an important point in the rich Buddhist traditions in the country, the manner in which the period of colonization traditions, including Buddhist traditions. He shared the manner in which the Buddhist relics have been brought back home after a gap of 125 years. The Buddhist relics, the sacred Piprava relics, have returned home to India. Prime Minister Narendra Modi in those visuals taking a look at sacred Buddhist relics and artifacts. An important exposition of the sacred Piprava relics taking place in Delhi. The exposition is titled The Light of the Lotus, Relics of the Awakened One. Prime Minister in his address spoke about the rich Buddhist traditions in India, the grand exposition of sacred Piprava relics, those visuals of Prime Minister taking a look at the special exhibition of Buddhist artifacts and relics. Prime Minister in his address spoke about the manner in which Buddhist traditions have formed a rich part of Indian traditions. He spoke about his birthplace, Vadnagar. He also spoke about how India is not just home to sacred Buddhist relics, it's also a home to living Buddhist traditions. A tradition that India has carried forward not just within the country, but also outside. He spoke about how India has played a key role in the protection and preservation of Buddhist traditions across the world. भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र रेलिक भारत की विरासत है। शताब्दी भर की प्रतीक्षा के बाद ये धरोहरें फिर से भारत लौटी है। इसलिए मैं देश भर के लोगों से भी कहूंगा कि वो इन पुण्य अवशेषों के दर्शन के लिए, भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़ने के लिए एक बार यहां अवश्य आए। हमारे जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो युवा साथी हैं, जो बेटे बेटियां हैं,
वो इस प्रदर्शनी को जरूर देखें। ये प्रदर्शनी हमारे अतीत के गौरव को हमारे भविष्य के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देश भर के लोगों से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रदर्शनी में जरूर सहभागिता करें। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। And you were listening to Prime Minister Narendra Modi addressing a gathering after inaugurating a special exposition of sacred Piprava relics. These are holy Buddhist relics that have come home to India after a gap of 125 years. Prime Minister Narendra Modi in his address spoke about how India is home to not just the holy Buddhist relics, but also rich Buddhist traditions and the thought and the values. He spoke about how he wishes the blessings of Lord Buddha 2026 brings in peace and prosperity for the whole of the world. He spoke about the manner in which his personal connectedness with the Buddhist traditions, Vadnagar, where Prime Minister Modi was born, is also home to important places of Buddhist learning. He spoke about, as Prime Minister, he has often carried a sapling of the holy Bodhi tree to the countries that particularly follow Buddhist traditions, and that has been an important moment. Also spoke about how Pali has been accorded a category of classical language. Pali is the language in which the Buddhist teachings were given out in present. This is a holy exhibition of sacred Piprava relics that have been repatriated to India after a gap of 125 years. The exposition is titled The Light of the Lotus, Relics of the Awakened One. Prime Minister in his address spoke about the manner in which India continues to play a key role in taking forward, preserving and protecting Buddhist traditions, not just within the country, but also outside. Those were some of the highlights of Prime Minister's address. Participating in this exposition, the Prime Minister said that people, students, young people must all come and seek blessings of Lord Buddha, follow in the path of his teachings, and also get a darshan of these holy relics here in New Delhi in this special expositions. Those were some of the highlights of Prime Minister's programs. News and updates continue after a short break. Namaskar.